Hello everyone, welcome back to my channel Biology Simplified. Welcome back to another video. Today we are going to talk about evolution. We are mainly going to talk about theories of evolution. तो सबसे पहले evolution क्या होता है? Basically evolution is a process in which simpler forms change into complex forms. तो हम एक ऐसे प्रोसेस की बात करने वाले हैं जिसके अंदर जो सिंपल फॉर्म्स हैं उनके अंदर चेंजेस आएंगे, मॉडिफिकेशंस आएंगे, जिसके थ्रू वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज होते जाएंगे. सबसे पहले बहुत ही सिंपल फॉर्म थी इस अर्थ के ऊपर, देन उसके अंदर चेंजेस आए एंड देन इट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स. So we are basically going to talk about evolution, and in this video we are mainly going to focus on theories of evolution. अब ये जो theories है ये हमें ये नहीं बताएंगी कि how evolution started. So it is not going to tell us about how life originated. It is going to tell about how simpler forms changed into complex forms. So we are not going to focus on how life originated. We are going to focus on how simple forms changed into complex forms. What is basically the theory regarding this? So इसके regarding 4 theories दी गई थी. First one was Lamarck's theory, which is also known as Lamarckism. Second is the Darwin's theory, that is also known as Darwinism. ये Darwin's theory was the most acceptable one. Then third theory was De Vries theory of mutation, that is mutations. And fourth one was modern concept of evolution, which is also known as synthetic theory. This is the theory which is now accepted. This is the most accepted theory now. So today we are going to mainly talk about Lamarck's theory. So हम सिर्फ Lamarck की theory को focus करेंगे in this video, and in the upcoming videos we'll talk about Darwin's theory also, mutation and synthetic theory also. So without any further ado, let's start with the Lamarck's theory of evolution. This is also known as Lamarckism. Theory of inheritance of acquired characters. It can be defined as the change in structure and function of any organ acquired during the lifetime of an individual in response to changes in the surrounding environment and are inherited by its offsprings and keep on adding up over a period of time. तो लमार्क की थ्योरी बेसिकली क्या कहती है कि जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट की वजह से ऑर्गेनिज़म के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस आगे इनहेरिट होते हैं, आगे पास ऑन होते हैं, एंड ये चेंजेस जो हैं वो ऐड होते जाते हैं. These changes accumulate for generations and lead to the origin of new species. So this was the theory of Lamarck. Lamarck कहता है कि जो इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट्स हैं उसकी वजह से जो ऑर्गेनिज़म है उसके अंदर चेंजेस आते हैं, एंड वो जो चेंजेस हैं वो आगे न्यू जनरेशन्स के अंदर पास ऑन होते हैं. ये चेंजेस वो जनरेशन के अंदर इकट्ठे होते जाते हैं एंड जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज़ फॉर्म होती है. सो दिस वाज द मेन थ्योरी गिवन बाय लमार्क. Now we'll see what were the postulates of Lamarck's. Lamarck's theory is also known as theory of inheritance of acquired characters, because Lamarck ने क्या बोला कि जो भी characters environment के change होने पर body के अंदर changes लेके आते हैं वो आगे acquire होते हैं, new generation के अंदर वो आगे pass on होते हैं. So his theory is also known as inheritance of acquired characters. अब हम इसके postulates देखेंगे. First postulate is new needs. The new needs result in the formation of new organ or part of the body. If the need continues, that organ or part also continues to grow. So Lamarck ने कहा कि जो न्यू नीड्स होती हैं ऑर्गेनिज़म की उसकी वजह से ही बॉडी के अंदर न्यू ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है या न्यू पार्ट्स की डेवलपमेंट होती है. अगर वो नीड कंटिन्यू हो रही है, अगर बॉडी को उस ऑर्गन या पार्ट की ज़रूरत है तो वो ऑर्गन या पार्ट ग्रो करेगा. बट इफ़ इट्स नॉट नीडेड देन इट विल shrink or it will regress. It will basically get reduced. Next postulate is acquisition of new characters. What does it mean? It means जो new needs की वजह से new characters आए हैं अब वो कैसे develop होंगे. तो लमार्क ने बोला इसके लिए 2 उसने points दिए. One is by use and disuse. This says the continuous use of an organ or organs keep them functional and makes them stronger and much more efficient.
while the continuous disuse leads to reduction in size and to their final disappearance. So बेसिकली उसने कहा कि जिस ऑर्गन की कंटिन्यूसली यूज़ होगा, जो ऑर्गन वो ग्रो करेगा, वो बेटर डेवलप होगा, एंड जो ऑर्गन यूज़ नहीं होगा वो श्रिंक हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा और इट मे ऑल्सो डिसअपियर. तो बेसिकली ही सेड कि जो नए करेक्टर्स हैं वो कैसे इवॉल्व होंगे. अगर उनको नए पार्ट्स को यूज़ किया जाएगा तो वो और ज़्यादा डेवलप होंगे, अगर उनको यूज़ नहीं किया जाएगा तो वो डेवलप नहीं होंगे एंड दे विल बिकम रिड्यूस्ड. सेकेंड इज़ इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट. Organisms acquire new characters due to direct or indirect influence of environment. So Lamarck basically said जो environment है उसका basically direct या फिर indirect effect होगा. अगर environment के अंदर कोई changes आएंगे तो body के अंदर भी, organism की body के अंदर भी changes आएंगे. So these were the 2 points of acquisition of new characters. जो new characters है वो कैसे develop होंगे, वो basically कहाँ से आ रहे हैं new characters. नेक्स्ट पॉस्टुलेट इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स. इसके अंदर लमार्क ने बोला कि जो करेक्टर्स एनवायरनमेंट के चेंज होने पर आ रहे हैं या एनवायरनमेंट के चेंज होने पर जो नीड्स हो रही हैं, ऑर्गेनिज्म की जो नई नई नीड्स आ रही हैं, उसकी वजह से जो नए करेक्टर्स आ रहे हैं या नए ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स आ रहे हैं वो आगे पास ऑन होते हैं न्यू जनरेशन के अंदर. So this was the third postulate given by Lamarck. The characters acquired by an organism during its lifetime are passed on to next generation. In every generation, some new characters are acquired or the older ones keep on increasing or improving. As a result, after a number of generations, the species become different from the parental one and evolves into a new one. So this was basically the third postulate कि जो characters हैं environment के change होने पर या new needs की वजह से जो characters आ रहे हैं वो आगे next generation के अंदर pass on होंगे. And ये जो characters हैं वो इकट्ठे होते जाएंगे, इम्प्रूव होते जाएंगे, जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज़ बन जाएंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट लमार्किज्म, द 3 postulates ऑफ लमार्किज्म. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ लमार्किज्म. तो लमार्क ने कुछ ऐसी एग्जांपल्स दी टू काइंड ऑफ प्रूव हिज थ्योरी. सो फर्स्ट उसने एग्जांपल दी लॉन्ग नेक इन जिराफ्स. सो लमार्क ने बोला कि जो जिराफ था वो डियर लाइक था, इट वाज लाइक अ डियर, एंड उसकी जो नेक थी इट वाज वेरी शॉर्ट. मतलब जो जिराफ के इंसेस्टर्स थे उनकी नेक बहुत शॉर्ट थी एंड वो ग्रासी वेजिटेशन के ऊपर फीड करते थे. बट जिस एरिया में जिराफ्स वर बेसिकली लिविंग, उस एरिया के अंदर जो है ग्रासी वेजिटेशन धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और वहाँ पे सिर्फ बड़े ट्रीज़ रह गए थे. देयर वर ओनली टॉल ट्रीज़ प्रेजेंट देयर. तो जो जिराफ है उसने अपनी नेक स्ट्रेच की, उसकी नेक की कॉन्स्टेंट स्ट्रेचिंग ओवर द जनरेशन्स की वजह से उसकी जो नेक है उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई. तो बहुत सारी जनरेशन तक जो जिराफ है उसने अपनी नेक स्ट्रेच की, जिराफ के एंसेस्टर्स ने, तो धीरे धीरे करके जिराफ की नेक की लेंथ इंक्रीज़ हो गई. तो लमार्क ने बोला कि इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से, क्योंकि पहले ग्रासी वेजिटेशन थी एंड तब बाद में सिर्फ ट्रीज़ रह गए, टॉल ट्रीज़ रह गए, तो देयर वाज अ एनवायरमेंटल चेंज. उसकी वजह से जो जिराफ है उसके लिए एक न्यू नीड थी, दैट इज़ टू इंक्रीज़ द लेंथ ऑफ इट्स नेक. तो जिराफ ने अपनी नेक स्ट्रेच की एंड कांस्टेंट उसने अपनी नेक की स्ट्रेचिंग की, इसकी वजह से उसकी नेक की लेंथ है जो वो इंक्रीज़ होगी. सो दिस वाज बेसिकली बेस्ड ऑन लमार्क्स थ्योरी. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ एवोल्यूशन ऑफ स्नेक्स. Ancestors of snakes were limbed and lizard-like. Snakes' ancestors started creeping on the ground. तो Lamarck said कि जो snake के ancestor थे उनकी limbs थी एंड वो lizard-like थे, पर mammals की डर की वजह से वो बेसिकली burrows के अंदर छिप के रहते थे एंड वो creep करते थे ग्राउंड के ऊपर, burrows के अंदर रहते थे. इसकी वजह से उनके पास कोई नीड नहीं थी limbs की, तो लिम्स की नीड नहीं थी, तो इसलिए वो लिम्बलेस हो गए. जो लिम्स हैं वो बेसिकली रिड्यूस होते होते गायब भी हो गई, इसकी वजह से वो लिम्बलेस हो गए. नेक्स्ट एग्जांपल इज़ एवोल्यूशन ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स, डेवलपमेंट ऑफ वेब्ड फीट. तो लमार्क ने बोला कि जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं वो बेसिकली पानी के अंदर ईजीली सिट करने के लिए अपने टोज़ स्प्रेड करके रखते थे. तो टोज़ स्प्रेड करने की वजह से उसकी जो फीट है उसकी स्किन जो है स्ट्रेच होती थी, वो स्किन की स्ट्रेचिंग, कांस्टेंट स्ट्रेचिंग की वजह से उनकी जो फीट है इट बिकेम वेब्ड.
तो वेब्ड फीट वहाँ से इवॉल्व हुई कॉन्स्टेंट स्ट्रेचिंग ऑफ स्किन की वजह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एवोल्यूशन ऑफ फीट इन हॉर्स एंड डियर। सो लमार्क सेड कि जो हॉर्स एंड डियर हैं वो पहले सॉफ्ट ग्राउंड के ऊपर बेसिकली वॉक करते थे, तो धीरे धीरे जो ग्राउंड है उसके हार्ड होने की वजह से जो उनकी फीट है उसके अंदर चेंजेस आए, उनके जो डिजिट्स हैं वो कम हो गए फीट के, एंड उनकी लेग्स जो है वो उनकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई ताकि वो ईज़िली जो है हार्ड ग्राउंड के ऊपर चल सके। पहले ग्राउंड सॉफ्ट था तो इनकी फीट बिल्कुल ही डिफरेंट थी, तो ग्राउंड इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से ग्राउंड हार्ड हो गया, एंड उस ग्राउंड के हार्ड होने की वजह से उनकी फीट के अंदर चेंजेस आ गए, डिजिट्स का नंबर कम हो गया, एंड उनकी जो लेग्स थी उनकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ क्लास्पिंग बर्ड्स हैव डेवलप्ड शार्प एंड कर्व्ड डिजिट्स। सो ही सेड कि जो बर्ड्स बेसिकली ट्री की ब्रांच को ईज़िली क्लास्प कर लेती हैं, क्लास्पिंग बर्ड्स जो बेसिकली ईज़िली होल्ड कर लेती हैं, इट कैन होल्ड एनी थिंग वेरी ईज़िली, उनके अंदर शार्प एंड कर्व्ड डिजिट्स की जो डेवलपमेंट है दैट्स ड्यू टू देयर कॉन्स्टेंट यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन्स। तो उन्होंने अपने डिजिट्स का कॉन्स्टेंट यूज़ किया, कॉन्स्टेंट पर्चिंग की। व्हाट इज़ पर्चिंग? इट इज़ द मैकेनिज़्म थ्रू विच बर्ड्स सिट ऑन अ ब्रांच। तो बर्ड्स अपने जो फीट है उसको बेसिकली कॉइल कर लेते हैं, टोज़ को कॉइल कर लेते हैं अराउंड द ब्रांच टू सिट ऑन दैट ब्रांच। तो कॉन्स्टेंट पर्चिंग की वजह से, कॉन्स्टेंट यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, उसकी वजह से उनकी जो क्लास्पिंग जो है नीड्स हैं वो ज़्यादा बेटर तरीके से फुलफ़िल होने लग गई। उनके जो डिजिट्स हैं वो शार्प हो गए एंड कर्व्ड हो गए सो दैट दे कैन ईजिली क्लास्प एनी ऑब्जेक्ट। सो दीज वर द एग्जाम्पल्स गिवन बाय लमार्क। बट जो लमार्क की थ्योरी थी उसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था, एंड इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। दिस थ्योरी वॉज बेसिकली डिसरिगार्डेड। इसके अंदर बहुत सारी जो assumptions थी they were incorrect. He could not explain how the acquired characters are inherited, and there are many examples in which acquired characters are not inherited. तो उसने बेसिकली वो ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि एक्वायर्ड करेक्टर्स आगे फर्दर जनरेशन के अंदर कैसे पास ऑन होते हैं, एंड ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स है जिसके अंदर एक्वायर्ड करेक्टर्स इनहेरिट होते ही नहीं। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसके अंदर माइस की टेल को कट किया गया फॉर सो मैनी जनरेशन्स, 50 to 52 जनरेशन्स माइस की टेल को कट किया गया, बट इवन आफ्टर दैट जो न्यू जनरेशन थी उसके अंदर टेल अपीयर होती थी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो लमार्क की थ्योरी के फेवरेबल नहीं थे। तो लमार्क की थ्योरी वॉज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड। The environment and use and disuse of organs affect somatic cells only and do not influence the germ cells, so they are not inherited. बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के सेल्स हैं, सोमेटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। जो जर्म सेल्स हैं बेसिकली उसके अंदर अगर चेंजेस आते हैं तो वो आगे फर्दर इनहेरिट होते हैं, बिकॉज जो जर्म सेल्स हैं दे आर द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीचर्स, द जेनेटिक्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। जो सोमेटिक सेल्स है अगर उसके अंदर कोई चेंजेस आए हैं तो दे आर बेसिकली ऑफ नो यूज़, दे आर नॉट पास्ड ऑन टू फर्दर जनरेशन। पर जो लमार्क की थ्योरी है उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने कोई डिवाइड नहीं किया सोमेटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स को, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि इन्वायरमेंट की चेंजेस की वजह से जो बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं वो फर्दर पास ऑन होते हैं, बट दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। जो इन्वायरमेंट की वजह से बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं दे आर नॉट पास्ड ऑन, क्योंकि वो चेंजेस सोमेटिक सेल के लेवल पे होते हैं। अगर वो चेंजेस जर्म सेल के लेवल पे हों तो ही वो पास ऑन हो सकते हैं, बट ज़्यादातर जो इन्वायरमेंट की वजह से चेंजेस होते हैं दे आर ऑन द लेवल ऑफ सोमेटिक सेल्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लमार्किज्म, द थ्योरी ऑफ लमार्क। उसने बेसिकली कहा कि इन्वायरमेंट के चेंज होने पर बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं दे आर पास्ड ऑन टू फर्दर जनरेशन्स, बट दिस थ्योरी वॉज कम्प्लीटली इनकरेक्ट। एंड इसकी थ्योरी आगे फर्दर थ्योरीज आई जिसने इस थ्योरी को करेक्ट किया। बेसिकली नई थ्योरीज आई जिसने बेसिकली एवोल्यूशन के बारे में हमें बहुत कुछ बताया। विल टॉक अबाउट दोज थ्योरीज इन upcoming videos. So that's all about Lamarckism, theory of Lamarck. So that's all for today's video. I hope you liked it. Thank you so much for watching.